السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم تو میں یہ السلام کہہ رہا تھا کہ جو لوگ بھی یعنی کہ اس طرح کی گتیویدھیوں میں لپت ہوتے ہیں، وہ کسی بھی فرقہ کے ہوں، کسی بھی مذہب کے ہوں، کسی بھی دین کے ہوں، کسی بھی دھرم کے ہوں، تو اپنے دھرم کی چیز کو اپنے لوگوں کو خراب کرنے کے لیے اپنے ہی دھرم کی چیز کو مس یوز کرتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جس بھی دھرم میں اس طرح کے لوگ ہوں، چاہے ان کی تعداد ایک ہو، ضروری ہے کہ اس کا صحیح مفہوم ہم بتائیں۔ تو اس کے جواب میں ایک بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ جہاد سے وہ لوگ لیتے ہیں، جہاد کی جو آیتیں ہیں، جہاد کی جو حدیثیں ہیں، تو ایک تو یہ کہ کچھ لوگ نہیں اسلام میں جہاد نہیں ہے۔ نہیں بھائی، بہت سیدھی سی بات ہے، اسلام میں جہاد ہے، مگر جہاد ہے کیا؟ میں شارٹ میں لے چل رہا ہوں۔ جہاد مانا تو کوشش کرنا ہوتا ہے، لیکن جو جنگ ہے، لڑائی ہے، جہاد کا ایک پارٹ ہے۔ پہلا پوائنٹ مختصر میں بہت آسانی سے آپ سمجھ سکتے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اب جہاد کا جو معنی ہے، وہ چاہیں آپ جہاد کا معنی جنگ کریں ٹوٹلی، یا آپ یہ کہیں کہ جنگ جہاد کا ایک پارٹ ہے، لڑائی جہاد کا ایک پارٹ ہے، دونوں صورتوں میں جہاد ایک الگ چیز ہے اور آتنکواد ایک الگ چیز ہے۔ جس طرح دنیا کے ہر ملک میں، دنیا کے ہر مذہب میں، دنیا کے ہر دھرم میں ڈیفینس سسٹم ہے، اردو میں اس کو کہتے ہیں دفاع سسٹم ہے، اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کا سسٹم ہے، اسی طرح سے اسلام میں بھی ڈیفینس سسٹم ہے، اور اسی ڈیفینس سسٹم کو اسلام میں قتال کہا جاتا ہے، اور اسی کا زیادہ بڑا لفظ ہے جس میں کئی معنی ہیں، جہاد کہا جاتا ہے۔ یہ میرا دوسرا پوائنٹ تھا، میں 10 پوائنٹ بولوں گا ایک منٹ میں۔ تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جو آتنکواد ہے وہ پبلک فائٹ ہے، اور جہاد جو ہے یہ گورنمنٹ فائٹ ہے۔ یعنی جب لوگ بغیر قانون کے، بغیر نظام کے کہیں کسی کو قتل کریں، کسی کو ٹارچر کریں، کہیں فساد کریں، بلاسٹ کریں، خون بہائیں، یہ آتنکواد ہے۔ لیکن گورنمنٹ کا جو سسٹم ہوتا ہے، حکومت کا جو سسٹم ہے، ایک نظام کے تحت اگر وہ کام ہوتا ہے تو وہ غلط صحیح آپ کہہ سکتے ہیں، مگر اس کو آتنکواد نہیں کہتے۔ تو دونوں میں فرق ہے۔ جو دہشت گرد ہوتا ہے، جو آتنکوادی ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ حکومت والے جہاد کو، حکومت والے ڈیفنس سسٹم کو اپنے لیے یوز کرنا شروع کر دیتا اور برین واش کرتا ہے۔ اسی طریقے سے آتنکواد میں ظلم ہے، جہاد ظلم کے لیے نہیں ہے۔ آتنکواد ایک غیر قانونی عمل ہے، غیر قانونی کام ہے، لیکن جہاد ایک قانونی کام ہے۔ جہاد کا پورا پروسیجر ہوتا ہے گورنمنٹ میں، اس کی فائلیں ہوتی ہیں، اس کا سسٹم ہوتا ہے، اس کے لیے فوج ہوتی ہے، اس کا کمانڈر ہوتا ہے، اس کے لیے مشورہ کرنے والے ہوتے ہیں۔ آتنکواد میں یہ سب نہیں ہوتا ہے، ایک لوگ، دو لوگ، تین لوگ مل کر کے کچھ پلان کرتے ہیں اور چپکے سے کہیں جا کے کچھ کر دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں میں فرق ہے۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ آتنکواد کا مقصد ظلم ہے، آتنکواد کا مقصد ڈرانا ہے، آتنکواد کا مقصد کسی پہ قبضہ کرنا ہے، آتنکواد کے مقصد میں روزی روٹی بھی ہے، بہت سارا ہے۔ لیکن جو جہاد ہے اس کا مقصد زمین پہ قبضہ ہرگز نہیں ہے، کسی کی پیداوار پہ قبضہ ہرگز نہیں ہے، لوگوں کو قتل کرنا جہاد کا مقصد ہرگز نہیں ہے۔ یہ میرا چوتھا پوائنٹ تھا۔ پانچواں پوائنٹ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کو دہشت گرد لوگ پیش کر دیتے ہیں۔ ہر آدمی اپنے دھرم میں، کسی کے بھی دھرم میں دیکھ لے کہ اس کے دھرم میں بھی لڑائیاں ہوئی ہیں۔ اب وہ جو آتنکوادی ہے وہ اپنے دھرم کی لڑائیوں کو اپنے لیے یوز کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور میرے بھائی، یہ مس یوز نا، یہ مس یوز صرف قرآن حدیث کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو دنیا کے کسی بھی قانون، یہاں تک کہ لوگ دستور کا بھی مس یوز کر لیتے ہیں، ملک کے قانون کا بھی مس یوز کر لیتے ہیں۔ تو مس یوز کی وجہ سے کسی دستور کو، کسی قانون کو، کسی گورنمنٹ کو، کسی ملک کو، کسی مذہب کو برا نہیں کہہ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی جنگیں کی، ساری جنگیں ڈیفنس کے لیے تھی۔ اب میں ساری مثال نہیں پیش کر سکتا، میں صرف 2 جنگوں کی مثال پیش کرتا ہوں۔ یہ میرا 5واں پوائنٹ ہے، جنگ بدر، پہلی جنگ۔ اس میں یہ جنگ کیوں ہوئی؟ پہلا نمبر، مسلمانوں کو مکے میں ستایا گیا۔ دوسرا نمبر، مسلمانوں کو مکے سے نکال دیا گیا۔ تیسرا نمبر، مسلمانوں کی زمینوں پر اور ان کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا گیا۔ چوتھا نمبر، مکہ چھوڑنے کے بعد مدینہ کی سرحد پر
छापा मारी की गई और खतरा पैदा किया गया। उसके बाद फिर मुसलमानों को जंग की धमकी दी गई और मदीने से निकलवाने का प्रेशर बनाया गया। फिर मुसलमानों से जंग के लिए बड़े पैमाने पर बिजनेस में पैसा लगाया गया और मुसलमानों के सरहद से गुजर रहे थे, यहां आकर के जंग होती। बदर की डिफेंस है टोटल। मैदान उहुद की जंग हुई। उहुद में क्या होता है, मुसलमानों से बदर की हार का बदला लेने के लिए सारे लोग इकट्ठा होते हैं। खंदक और अहजाब की जंग होती है, उसमें जब उहुद में बदला नहीं ले सके भरपूर, तो सारी कम्युनिटी के लोग मुसलमानों के खिलाफ जमा होकर के मदीने को घेर लिया चारों तरफ। यहां जंग हुई है, 3 मिसाल मैंने दिया। इसी तरीके से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भी जंगें की डिफेंस में की। अब कोई आतंकवादी बाहर से किसी मुल्क के नौजवान को ब्रेन वॉश कर रहा हो, रसूल के मैदान बदर वाली जंग को लेकर के, मैदान उहुद में जो जंग हुई उसको लेकर के, गज़वा खंदक या अहज़ाब हुई उसको लेकर के, तो नौजवान को सोचना है कि ये जंग किस तरह थी, कैसे थी, क्यों हुई थी। उसके बाद में छठा पॉइंट यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आपके खुलफा ने भी इस तरह जंगें लड़ी, बाज दफा खतरे को हटाने के लिए और बाज दफा कुछ इकदाम भी किया किसी वजह से। 7वां पॉइंट, मुसलमान हुक्मरानों ने जो किया, कहीं अच्छा किया कहीं बुरा किया। जाहिर सी बात है, जितने ही लोग दीन से दूर रहेंगे उतने ही बुराई होगी। तो मुसलमान हुक्मरानों ने जो किया, 1400 साल हो गए ना इस्लाम को आए हुए, तो जाहिर सी बात है इस्लाम मुसलमान हुक्मरान के, मुसलमान आदमी के हर काम के लिए जवाबदेह नहीं है। जिस तरीके से और कौमों के और मजहबों के और मुल्कों के राजाओं ने, हुक्मरानों ने, बादशाहों ने अच्छा बुरा किया है, उस पर फैसला हो सकता है, लेकिन उसको लेकर के किसी मजहब विशेष को आतंकवाद का इल्जाम नहीं दे सकते। 8वां पॉइंट, हर तबके में, हर मजहब में, चाहे वो कानून की किताब हो, मजहब की किताब हो, तारीख की किताब हो, अपने मन के हिसाब से मतलब निकालने वाले लोग मौजूद रहते हैं। यकीनन दुनिया में कुछ मुसलमान भी ऐसे होंगे, या कह सकते हैं जिन्होंने कुरान हदीस को ही दलील बनाया अपने आतंकवाद के लिए, जैसे ओसामा बिन लादेन, अबू मुसाब जरकावी ने, उलमाए अरब ने इनका बड़ा रद्द किया। और मैं एक इंतहाई अहम पॉइंट बताऊंगा, मुसलमानों को भी, गैर मुसलमानों को भी, और एजेंसियों को भी, और दीगर तमाम लोगों को भी, कि इनमें कहीं उलमा नहीं रहे। जितने आतंकवादी दुनिया में हैं, उनमें कहीं भी कोई आलिम उनके साथ नहीं है। बहुत अहम पॉइंट है, इसको याद रखना चाहिए। कोई एक भी मजहबी, अगर मजहबी आलिम नहीं है उनके पास, इसका मतलब क्या भाई, मजहब में अगर होता, कुरान में अगर होता, हदीस में अगर होता आतंकवाद का समर्थन, तो कोई ना कोई मजहबी आलिम उनके साथ रहता। लेकिन किसी भी आतंकवादी के बारे में, ग्रुप के बारे में आप पता कीजिए, उनके साथ मजहबी आलिम बेसिकली नहीं रहे हैं, जो ऑथेंटिक उलमा हैं। इससे पता चलता, और इसीलिए ये आतंकवादी उलमा को गालियां देते हैं, बल्कि उनको कहते हैं ये हैज निफास, मतलब औरतों की पीरियड के मसले बताने वाले हैं, ये जहाद में नहीं जाने वाले, मतलब ताना और गाली देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मजहब में आतंकवाद के लिए कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आतंकवाद मजहब में होता तो आतंकवादियों के साथ मजहबी उलमा जरूर होते। सिर्फ आज की बात नहीं है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने खारजियों से जंग लड़ी। और खारजी जो थे, वो आज के नए टर्म में, हमारा जो नए जमाने में जो टर्म है आतंकवाद का, वो एक तरह से ये समझ लीजिए कि वो भी आतंकवादी लोग थे। उनसे सहाबा ने जंगें लड़ी, और खारजियों के साथ एक भी रसूल का सहाबी नहीं था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आतंकवाद का ताल्लुक मजहब से है नहीं। 9वां पॉइंट, अब सवाल इस बात का है कि भाई ठीक है मौलाना साहब, आपने कह दिया कुरान में नहीं है, आपने कह दिया हदीस में नहीं है, आपने कह दिया मौलवी उसका समर्थन नहीं करता है, हम उसके खिलाफ हैं। ठीक है, उसके खिलाफ हैं, मगर हो तो रहा है, किसी भी कौम में हो रहा हो तो रहा है, थोड़ा हो रहा है, ज्यादा हो रहा हो तो रहा है, इतना ही हो रहा हो तो रहा है, कैसे मिटेगा? मैं इसका जवाब ये देता हूं कि आतंकवाद मिटाने के लिए
पूरी दुनिया के जो रहनुमा हैं, जो हुक्मरान हैं, उनको सच्ची नीयत और सच्चे इरादे से काम करना पड़ेगा। हो ये रहा है कि बात होती है आतंकवाद मिटाने की, लेकिन दुनिया में बात दफा ऐसा होता है कि लोग आतंकवादी गिरोहों को पालते भी हैं। जाहिर सी बात है बंद होना चाहिए। हमारे मुल्क में कैसे खत्म हो भाई? हमारे मुल्क में भी सच्चा और पक्का इरादा होना चाहिए। एजेंसियों को हर तबके के उलमा और धर्म गुरुओं के साथ बैठना होना चाहिए और सबको बताना चाहिए कि अपने यहाँ ऐसा माहौल बनाएं कि आतंकवाद के बारे में एक नफरत हो। हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ जुटेंगे तब आतंकवाद खत्म होगा। अगर आप आतंकवाद खत्म करना चाहते हैं, अगर मुसलमान आतंकवाद खत्म करना चाहता और ये कहे कि नहीं नहीं हमारे अंदर नहीं आपके अंदर है, अगर हमारे बरादरानी वतन आतंकवाद खत्म करना चाहते हैं और वो कहे हमारे अंदर नहीं आपके अंदर है, तब इससे आतंकवाद नहीं खत्म होगा। हम और आप दोनों एक साथ मिल के, एक साथ जुड़ करके जब आतंकवाद को खत्म करेंगे और इसके खिलाफ काम करेंगे, तब जो है काम होगा। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो नहीं होगा। जो सिस्टम है ना, उसमें इतनी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि जिस भी समाज का आतंकवाद में, दहशतगर्दी के केस में कोई पकड़ा जाए, जब भी तो शुबा ना किसी को हो, फौरन दिमाग जाए कि हाँ सही पकड़ा है, सही पकड़ा है, वाकई ये आदमी गड़बड़ होगा तभी पकड़ा गया है। यानी इतनी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए पब्लिक में, और पब्लिक को इतना भरोसे में लेना चाहिए ताकि आतंकवाद के बारे में अगर कोई पकड़ा भी जाए ना, तो उसके बारे में इतनी सी हमदर्दी किसी भी समाज में ना हो। ऐसा होना चाहिए, ऐसा हमारी आवाज पहुंचनी चाहिए लोगों तक। 10वां पॉइंट ये है कि कुरान में तो मुशरिकीन से क़िताल का हुक्म है। कुरान में मुशरिकीन से क़िताल का हुक्म है। आप तो कह रहे हैं आतंकवाद नहीं होना चाहिए, आपकी किताब में मुशरिकीन को मारने का हुक्म है। भाई जो खारजी मिजाज होते हैं ना, वो इसी से दलील पकड़ते हैं। खारजी मिजाज, आतंकवाद वाले जो मिजाज रखते हैं मिस यूज करने के लिए, इसी को दलील पकड़ते हैं। और मुशरिकीन को भी मारते हैं, मुसलमानों को भी मारते हैं। मुसलमानों को मारने के लिए भी इसी आयत से दलील पकड़ते हैं। अब आप क्या कहेंगे, कुरान मुसलमानों को मारने के लिए आया है? मुसलमानों को भी मारते हैं, इसी दलील से मारते हैं। अगर कोई है एक ही हो तो भी। दूसरी तरफ जो मुखालिफ व्यू रखते हैं, वो भी इसी से जबरदस्ती पर दलील पकड़ते हैं कि भाई इस्लाम गैर मुस्लिमों को मारने की बात करता है। मेरे भाई इस हम लोग तो इस पे बार बार बात किए, रज़ैद भाई ने इस पे बार बार बात की है, किफायत भाई ने इसे बार बार बात कही है कि तमाम बातें ये जो है ना, वो जंग के हालात की बातें हैं। ये जंग कभी मुसलमान से भी हो सकती है और मुशरिक से भी हो सकती है, दोनों से हो सकती है। मुसलमान से भी जंग कैसे हो सकती है? मुसलमान को भी मारने का हुक्म कैसे हो सकता है? मुसलमान से लड़ाई कैसे हो सकती है अगर मुसलमान ना हक पर है? तो आतंकवाद के लिए कुरान नहीं आया। कुरान में आतंकवाद की कोई दलील नहीं है। कुरान जुल्म के खिलाफ है, जिहाद जुल्म के खिलाफ है। तो जुल्म जैसे एक दलील में पकड़ कर पेश करके बात खत्म करता हूं। वइन ताइफतानी मिनल मुमिनीन क़तलू फास्लिहू बैनहुमा फ़इन बगत इहदाहुमा अलल उखरा फ़क़ातिलुल लती तबगी हत्ता तफिया इला अम्रिल्लाह। के ईमान वालों का दो गिरोह अगर झगड़ा करे, लड़ाई करे, तो दोनों में सुलह कराओ, लेकिन दोनों में से कोई दूसरे पे बगावत करे, बात नहीं माने, जुल्म करे, गवर्नमेंट का सिस्टम नहीं तस्लीम करे, हुक्मरानों की बात नहीं माने और अपने जुल्म पे उतारू हो जाए, तो वो जो बागी है, गिरोह है, जो है खारजी गिरोह है, जो कानून व्यवस्था को नहीं मान रहा है, कानून व्यवस्था के हिसाब से काम नहीं कर रहा है, उससे लड़ाई करो, यहां तक कि वो अल्लाह के फैसले की तरफ लौट आए। क्या पता चला भाई? पता ये चला कि जुल्म के खिलाफ मुसलमान से भी लड़ाई है, जुल्म के खिलाफ गैर मुसलमान से भी लड़ाई है। जुल्म कोई भी करेगा, इसमें आतंकवादी के आतंकवाद के लिए दलील कुछ नहीं है। अच्छा, ये काम कौन करेगा? ये मुसलमान के खिलाफ भी, अगर मुसलमान भी गलती पे है तो ये काम कौन करेगा? ये मुसलमान नहीं करेगा, पब्लिक नहीं करेगी, ये काम भी गवर्नमेंट करेगी, ये काम भी सिस्टम करेगा। पब्लिक के हाथ में इस किसी भी तरह का, इस किस्म का कोई इख्तियार शरीयत ने नहीं दिया है। और मैं एक नसीहत की बात कह करके बात खत्म करूंगा कि दुनिया में जहां भी
पावर के इस्तेमाल की आजादी पब्लिक को मिल गई, पब्लिक को इन्वॉल्व कर लिया गया गवर्नमेंट के सिस्टम में, गवर्नमेंट के सजा के निजाम में, वहां लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो जाता है, परेशानी हो जाती है। तो खुलासे की बात यह है कि आतंकवाद और दहशतगर्दी ये जुल्म है, खुलासा नंबर 1। दूसरी बात यह है कि आतंकवाद और दहशतगर्दी की कुरान हदीस में कोई दलील नहीं है। तीसरी बात, जो लोग आतंकवाद और दहशतगर्दी के लिए कुरान हदीस से दलील लाते हैं वो कुरान और हदीस का मिसयूज करते हैं। कुरान पाक में जो जिहाद का हुक्म है, क़िताल का हुक्म है, वो जंग के बैकग्राउंड में है, और वो जंग भी पब्लिक के लिए नहीं है, गवर्नमेंट के लिए है। और ऐसी जंग, ऐसी लड़ाई, ऐसा सिस्टम दुनिया के हर मजहब, हर कौम और हर मुल्क को रखना पड़ेगा। अगर कोई आतंकवादी, कोई दहशतगर्द किसी मुल्क के लॉ सिस्टम को, किसी मुल्क के डिफेंस सिस्टम को क्या नाम से मिस यूज करके कहे कि नहीं नहीं हमारे मुल्क में ये जो डिफेंस सिस्टम है ना, मैं भी जा करके मार के आऊंगा, क्यों ये लोग खिलाफ हैं, तो इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। मैं अपनी बात इसी पे खत्म करता हूं कि दुनिया में आतंकवाद का खात्मा होगा जब हम सब मिल के काम करेंगे, सच्चे इरादे और सच्चे अमल के काम करेंगे। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को अमन व अमान का गहवारा बनाए और दुनिया में भी अमन व अमान कायम फरमाए। आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह शेख, बहुत बेहतरीन, जज़ाकल्लाह खैर। चलिए, तो अब मैं शेख किफ़ायत, शेख शाबान और मैं, हम तीनों स्टेज पर मौजूद हैं और हम गेस्ट का सिलसिला शुरू कर रहे हैं नॉन स्टॉप। फैसल भाई, आप हमारे फर्स्ट गेस्ट हैं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। मैं एक्चुअली, मेरा नाम फैसल मोहिउद्दीन है, मैं आईआईटी मद्रास में पढ़ता हूँ यहाँ पे। मुझे ये पूछना था कि मेरे यहाँ पे जो नॉन मुस्लिम फ्रेंड्स हैं तो वो लोग मुझसे बहुत बार क्वेश्चंस पूछते हैं इस्लाम के बारे में कि ऐसा क्यों है इस्लाम में, वैसा क्यों है इस्लाम में। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब मैं ट्रांसलेशन भी कुरान का पढ़ता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत मतलब मैं दीन की नॉलेज सीख करता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सवालों का जवाब मुझे आता भी है। तो लेकिन मुझे कभी कभी लगता है, जैसे अभी मेरे एक दोस्त ने बोला है कि अभी तो हम लोग का क्विज आने वाला है, इसकी वजह से मैंने बोल दिया क्विज के बाद बात करेंगे। उसने बोला था कि मुझे मैं सब रिलीजन के बारे में जानता हूँ, मुझे इस्लाम के बारे में जानना है। तो मैंने बोला ठीक है, क्विज के बाद बात करते हैं। लेकिन अब मुझे ये नहीं समझ आता है कि मतलब मैंने कहीं मैं उसको कन्वे करूँ मैसेज और सही से कन्वे ना करूँ तो ये नेगेटिव तरीके से वो ले ले। तो मुझे इस केस में कैसे जवाब देना चाहिए अगर कोई मुझसे पूछता है कि इस्लाम क्या है, और कोई मुझसे कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लेता है इस्लाम से? तो जज़ाकल्लाह खैर। जी शेख किफ़ायत, आप पहले बताएं। थोड़ा सवाल दोहराएंगे जल्दी, क्या पूछा उन्होंने? कि इनका बुनियादी सवाल ये है कि वो, उनके जो नॉन मुस्लिम फ्रेंड है वो उन्हें सवाल पूछते हैं इस्लाम के मुतालिक। इनके पास कुछ मुताला है, कुछ स्टडी है, तो कुछ चीज़ें बता लेते हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं कि क्या उन्हें वो सवालात को लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इन्हें ये चीज़ का डर भी है कि कहीं वो पूरा इंसाफ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, बहुत सही बात है कि अगर आदमी के पास मुकम्मल जानकारी नहीं है तो खुद जवाब नहीं देना चाहिए, रहनुमाई कर देनी चाहिए किसी शख्स के पास। अब वो सवाल की नौइयत पर मुनहसिर है किस किस्म के सवालात हैं, तो उस तरह के सवालात जो उलमा लेते हैं उनकी तरफ रहनुमाई करनी चाहिए। तो अगर जानकारी नहीं है तो खुद से जवाबात नहीं देने चाहिए, कुछ का कुछ हो सकता है। जैसे मेडिकल लाइन में अगर किसी आदमी को जानकारी नहीं है तो इलाज नहीं करना चाहिए, किसी डॉक्टर को रेफर करना चाहिए, तो ऐसे किसी आलिम और जानकार की तरफ रेफर करना चाहिए जिस तरह का सवाल है उस हिसाब से। जी फैसल भाई, आपका क्या कहना है इस चीज के ताल्लुक से? आप पूछ सकते हैं। जी, एक्चुअली ये है कि मतलब अगर मैं उन लोगों का जवाब नहीं दूं तो मतलब मुझे कैसे उन लोगों को रिप्लाई करना चाहिए? जैसे वो लोग पूछती है कि अच्छा इस्लाम में वुमेन्स को राइट नहीं मिलता है, तो इसका मैं कैसे, इस टाइप के सवाल का जवाब मैं कैसे दूं, या फिर उन लोगों को कहाँ गाइड करूं कि आप यहाँ जाके चेक करिए? असल में देखिए, जाहिर सी बात है जवाब देने के लिए कुछ ना कुछ तो पढ़ना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। जैद भाई की बहुत सारी वीडियोस हैं, इस स्ट्रीम के बहुत सारी वीडियोस हैं जो औरतों पर बहुत तफसील से बात हुई है। तो आप जवाब देने के लिए तो थोड़ा सा उलमा को और अहले इल्म को सुनना पड़ेगा कि किस अंदाज में वो जवाब देते हैं, और थोड़ा पढ़ना भी पड़ेगा
तभी मुमकिन हो सकेगा आपसे। अब आपके साथ अगर इस तरह के सवालात आते हैं तो जाहिर सी बात है हर सवाल के वक्त तो आलिम मौजूद नहीं होता है, या हर सवाल के वक्त पोजीशन ऐसी नहीं रहती है कि आप कॉल कर लें, आप पूछ लें, कुछ खुद से जवाब देना पड़ेगा। तो थोड़ा सा मुताला जारी रखें इस तरह से, तो इंशाल्लाह आसानी होगी। और सवालात भी बहुत कॉमन होते हैं, औरतों के बारे में होगा, दहशतगर्दी के बारे में होगा, गैर मुस्लिमों के बारे में होगा, इस तरह के सवालात आमतौर पे होते हैं। तो इन मौजूआत को जरा सुन लें अच्छे उलमा को। और क्या नाम से स्ट्रीम पर भी बहुत सारी बात हुई है इस मौजू पे, तो इंशाल्लाह थोड़ी सी एक कॉन्सेप्ट मिल जाएगा आपको कि बेहतरीन तरीके से बात कैसी करनी है। और फिर कुछ चीज रह जाए तो कहे भाई ऐसा है कि इंशाल्लाह फिर हम बात करेंगे इस पे, तो इस तरीके से काम हो सकता है। और बेहतर है कि इस तरह के जवाबात तलाश करते हुए, पढ़ते हुए किसी आलिम के रहनुमाई में भी रहें, वरना बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जवाब ढूंढते हैं, अगर उनको जवाब नहीं जमता है तो उसका इनकार ही करने बैठ जाते हैं, यानी उसको शरीयत से निकालने बैठ जाते हैं। अगर किसी चीज़ का दिफा नहीं कर पाते हैं या सही जवाब नहीं दे पाते हैं तो उस बात से खुद ही बदन हो जाते हैं। तो अगर किसी चीज़ की मुकम्मल जानकारी नहीं, उसमें इस तरह से अकेले नहीं कूद पड़ना चाहिए। आप किसी आलिम के रहनुमाई में रहें, और रहनुमाई में रहने के साथ साथ आपको दिलचस्पी है तो पढ़ें, लिखें, वीडियो सुनें, लोगों को रेफ़र करें, लेकिन किसी के रहनुमाई में रहना ज़रूरी है, ताकि खुद उस अधूरे इल्म के साथ उस राह में जाएंगे तो खुद गुमराह ना हो जाएं, किसी गलत रास्ते पे आप ना चले जाएं। ये इस चीज़ का खतरा बना रहेगा, इसलिए किसी की रहनुमाई में रहना बहुत ज़रूरी है। जी जी, जज़ाकल्लाहु खैरन। ठीक है, माशाल्लाह फैसल भाई का जवाब हुआ। अभी हम अगले गेस्ट अब्दुल बासित। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अब्दुल बासित बोल रहा हूँ मैं। मेरा जो शेख शाबान बदर साहब है, उनके पॉइंट्स के रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो किफायतुल असनावली, शेख किफायतुल असनावली को मैं करना चाहता हूँ। उनकी खिदमत में रखना चाहता हूँ क्वेश्चन एक, कुछ तासुरात रखना चाहता हूँ। जी बताइए। सूरह आल इमरान की आखिरी आयत, आयत नंबर 200, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्बिरु वसाबिरु वराबितु वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। इसका मुझे इसकी मुझे थोड़ा तफसीर समझनी थी। और जो ये जो हिंद के मुसलमान हैं और जो कश्मीर के मुसलमान हैं, उनके लिए क्या रहनुमाई है। और सूरह सफ आयत 10 to 14 इनमें, और सूरह तौबा आयत 23 और 24, ये मुझे थोड़ा बहुत इनका थोड़ा तफसीर चाहिए था और इनका मफहूम चाहिए था, मतलब ताकि जो मुझे लगता है इसमें सोल्यूशन है हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए, या मेरा गलत भी हो सकता है, कोई सही नहीं हो सकता है, मगर हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए जो सोल्यूशन है तो इन आयतों में है। तो अब क्या पूरी दुनिया के मुसलमानों की जो इस वक्त प्रॉब्लम्स हैं, तो मुझे लगता है इनमें सोल्यूशन है उसका। और नंबर 1, नंबर 2, जो सूरह आल इमरान की आखिरी 11 आयतें हैं, जिसमें आखिरी 11 आयतों में क्या हमें साइंस पढ़ने का हुक्म कुछ ऐसा हो सकता है कि साइंस, हमें बोला गया है साइंस पढ़ो, इस कायनात की पैदाइश में गौर फिक्र करो, साइंस के साथ कुछ रिलेशन है कि नहीं? बस ये मेरा पॉइंट, ये मेरा दूसरा सवाल है। जी जी जी, दूसरा सवाल है ना ये? ठीक है, थैंक यू सो मच। मेरे ख्याल से सब टॉपिक से बाहर के सवाल आते हैं, और कई सवाल आते हैं, एक नहीं कई सवाल आते हैं। ये कहीं और पर इनके जवाब हासिल करें। ये दहशतगर्दी जो हमारा टॉपिक है, खास इसके ताल्लुक से कुछ बात हो तो आप कहें। कुछ आपने मशवरे दिए हैं और कुछ सवालात किए, तो बहुत सारे आपके सवाल हैं। आपको रिफर कर रहे हैं, कैसे टॉपिक से कनेक्ट हो रहा है वो जरा एक्सप्लेन करें। ओके गॉड, जी असल बयान है मेरे पास। इसमें तर्जुमा, जो सूरह आल इमरान की आखिरी आयत है, इसका तर्जुमा ऐसे है कि मैं अरबी नहीं जानता हूं, मगर इसमें तर्जुमा मैंने पढ़ा कि ए ईमान वालो, साबित कदम रहो, एक दूसरे को थामे रखो, जंग की तैयारी करो और अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम कामयाबी हासिल कर सको। तो शेख शाबान बेदार की आयत जो ही टच्ड दिस जहाद और ये चीजें, इनकी नजर में इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस आयत में क्या मतलब क्या रहनुमाई है? दैट्स माय पॉइंट। किफायत भाई ने तो कह दिया है, लेकिन अब आप चूंकि उस पर कायम है, बहुत मुख्तसर में मैं ये बात कहूंगा कि सबसे पहले तो मुसलमान को अपने अमाल पे नजर रखने की जरूरत है कि वो अल्लाह तबारक व तआला के अहकाम की इताअत कितनी कर रहा है, उसके अंदर दीन है कितना, उसके अंदर नमाज है कि नहीं है, रोजा है कि नहीं है, हज वो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मसलन हमारी प्रॉब्लम क्या है ना कि हमारे इख्तियार में अल्लाह तबारक व तआला ने जो चीजें की हुई हैं, नमाज पढ़ना हमारे इख्तियार में, एक मुसलमान नमाज नहीं पढ़ता है,
रोजा रखना इख्तियार में है, समाजी मामलात हमारे इख्तियार में है, तो पहली बात तो मुसलमान दीन से बहुत दूर है। दूसरी बात ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बताया है कि भाई जो भी मुश्किल हालात आते हैं, उन मुश्किल हालात में इंसान को सब्र करना चाहिए और बसीरत से और हिकमत से काम लेना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी मुश्किल हालात आए हैं, दूसरे लोगों पर भी मुश्किल हालात आते हैं और आएंगे। ये दुनिया में ऐसा होता रहता है। आप बीमार होते हैं, आप परेशान होते हैं, माशी मुश्किलात होते हैं और परेशानियां होती हैं, बास नौकरी से निकाल देता है, हाँ, बगैर रीजन के भी निकाल देता है, उसको नहीं चाहिए, तो क्या करते हैं हम? जाकर के कुल्हाड़ी लेकर के बास से लड़ाई करनी शुरू कर देते हैं। क्या ऐसा कुछ है क्या शरीयत में? शरीयत में क्या ऐसा हुक्म दिया गया? तो ये चीज सामने रखने की जरूरत है। और मैंने पहले ही बता दिया है कि जो भी जंग की बातें हैं, जंग की तैयारी की बातें हैं, वो सारी चीजें जाहिर सी बात है कि उनकी शर्तें हैं, उसकी शर्तें हैं इस्लाम में, उसका सिस्टम है इस्लाम में, निज़ाम है। जैसे कि दुनिया में सिस्टम है और निज़ाम है, तो उस सिस्टम के तहत वो बातें हैं, ना कि किसी मुसलमान को जरा सा खलीश हो गई, जरा सा कोई मसला हो गया तो पता चला कि वो अपनी समझ के हिसाब से वो जंग की तैयारी कर रहा है। किससे जंग करेगा? किस उसूल के तहत जंग करेगा? किसके मातहत जंग करेगा? कौन सी गवर्नमेंट के मातहत वो जंग करेगा? ये सारी बातें हैं और यही काम तो जो आतंकवाद में मुलविस होते हैं, यही काम तो वो करते हैं, आयतों का मिसयूज करते हैं और उनकी सही फहम नहीं हासिल करते हैं। तो इसमें बहुत ज्यादा बात नहीं की जा सकती क्योंकि क्या नाम से मौजू से बाहर, लेकिन जाहिर सी बात मिसयूज जी। Sheikh Zayed, एक मिनट, Sheikh Zayed, can I say just one thing, Sheikh Zayed? let me finish. अच्छा बोलो, क्या बोल रहे हो? सर शेख मोहतरम, मेरा व्हाट आई अंडरस्टैंड सूरह तौबा में इसलिए मैंने बोला क्योंकि उसमें लिखा है कि प्यार करो 3 चीजों से सबसे ज्यादा प्यार, वी हैव नॉट डू एनीथिंग। ठीक है, आई नो अंडरस्टैंड। यस यस सर, आप बता रहे हैं सूरह आल इमरान या मैं अभी बोल रहा हूं सूरह तौबा आयत नंबर 23 और 24 जिसमें बोला गया है प्यार करो। यस सर, एक मिनट, जो सूरह आल इमरान की जो आयत आपने बोले ना, पहले उसके बारे में राबितु जो है ना, वो राबितु, तो अगर आप इब्न कसीर देखें, तफसीर इब्न कसीर ही देख लें, तो हसन बसरी का कौल है कि मोमिनों को कहा गया, हुक्म दिया गया कि नमाज के दीन पर सब्र करें, कि जो अल्लाह ताला ने चुना, और तकलीफ में हो, मुश्किल में हो, तो भी वो इस्लाम पे कायम रहें। और इसके आगे आप देखते हैं कि मुराबता जो है, जो राबितु जो आता है ना, मुराबता, तो वो कहते हैं कि ये नमाज के बाद नमाज का इंतजार करना, ये चीज इब्न अब्बास से मिलती है, साहल बिन हनीफ से मिलती है, मोहम्मद बिन काबल कुरजी से मिलती है। और इस तरह की एक हदीस भी है जो सही मुस्लिम के अंदर है, जिसके अंदर आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें बताऊं एक ऐसी चीज जिसके जरिए अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को मिटाएगा, और वो है कि तुम वुजू करो, एक परफेक्ट वुजू करो, और जो मस्जिद की तरफ कदम लेते हो और एक नमाज के बाद दूसरी नमाज जो पढ़ते हो, फज़ालिका रिबातु। तो ये जो हदीस है इसके अंदर वाज़े दिया हुआ है, जो आपने कहा ना, जो तर्जुमा पढ़ा कि इसका मतलब है रिबात का मतलब है जंग करना, तो यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सही मुस्लिम की हदीस डायरेक्टली मौजूद है कि फज़ालिकुमुर रिबातु, कि ये रिबात क्या है, एक नमाज के बाद दूसरी नमाज का इंतजार करना, सही तरह से वुजू करना। मतलब जो बाज लोग कहते हैं कि जंग के लिए है, हाँ किसी हालत में, जब ऐसे मान लीजिए इंसाफ की बात हो, जब एक पूरी एक, जैसे हम देखते हैं कंट्री के भी वॉर के रूल्स होते हैं, तो वो सिचुएशन में जंग के लिए भी हो सकता है, लेकिन नॉर्मल जो बात है, तो ये हदीस यहाँ पर है इस बारे में। और हम देखते हैं कि इस बारे में और भी तफसीलात मौजूद है। तो ये आपको मैंने बताया, ये आपकी पहली आयत का जवाब हुआ। थैंक यू सो मच, बस just one more point. Can I say something, शेख मोहतरम? अब आयत सूरह तौबा में अगर आयत नंबर 24 देखेंगे तो उसमें अल्लाह ताला बोलते हैं कि अगर तुमने प्यार नहीं किया 3 चीजों से सबसे ज्यादा, आप तो मुझे बहुत ज्यादा जानते हैं, मतलब प्यार, वहां कुछ करना नहीं है, प्यार सबसे ज्यादा प्यार नहीं किया, ऐसा प्यार नहीं किया, तो अल्लाह ताला कहता है मैं तुम्हें अजाब में डाल दूंगा, मैं तुम्हें सजा दूंगा। हाँ, तो मतलब प्यार हमें तो, अब हम कह सकते हैं कि हम मुसलमान अमल में कमजोर है, तो ठीक है मानते हैं, मगर प्यार में भी कमजोर है, मतलब हम तो कह नहीं सकते, मतलब प्यार तो हमें है अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से, और तीसरी चीज उसमें है, उसमें उससे भी सबसे ज्यादा प्यार है। मेरे कहने का मतलब सवाल है ना, समझ गया। देखिए यहाँ पर जो आप सूरह तौबा की जो आयत बता रहे हैं ना, प्यार के बारे में, देखिए एक बात ये भी जान ले, किसी चीज का प्यार का हुक्म है या किसी भी चीज का हुक्म है, अगर उस चीज का मौका रहेगा तब ना, कोई मौका मान ले और उस चीज को उठाएं और आयत पढ़ें, बोले कि नहीं ये चीज है ये करो,
بھائی جہاد کی بات ہے یا لڑائی کی جو بھی بات ہے، ڈیفنس کی بات ہے، جب اسلامی حکومت کے ساتھ وہ مشروط ہے، کوئی اسلامی حکومت ہے، کسی اسلامک کنٹری کی فوج ہے، اور وہ فوج اسلامی کنٹری کی فوج ہے، وہ فوج کہیں لڑنے جا رہی ہے، تو آپ کو، اگر آپ فوج میں بھرتی ہوتے ہیں، آپ جا کے لڑائی کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. یعنی آپ کی کنٹری پہ کسی نے حملہ کیا، آپ اسلامک فوج کا حصہ ہیں، آپ ڈیفنس میں کھڑے ہوئے ہیں تو اچھی بات ہے. لیکن آپ پہ کسی نے حملہ نہیں کیا، آپ کو کوئی نہیں مار رہا ہے، آپ کو کوئی ستا نہیں رہا ہے، اور آپ کو کہ نہیں چلو اس سے پیار کرتے ہیں، یہ کون سی بات ہوئی بھائی؟ دیکھیں، والدین کی خدمت کا بھی حکم ہے قرآن میں، والدین کی خدمت کرو، ماں باپ کی خدمت کرو. اب کسی کے ماں باپ نہیں ہے اس دنیا میں، اس کے سامنے موقع نہیں عمل کرنے کا، پھر بھی وہ آیتیں پڑھے کہ نہیں چلو اس پر عمل کرو. تو بھائی جو بھی قرآن و حدیث کی آیتیں ہیں، اس پر عمل کرنے کا موقع رہے گا تب جا کے عمل کریں گے نا. خلیفہ کی بیعت کا حکم ہے، خلیفہ کے علاوہ کسی کی بیعت کا کوئی تصور نہیں ہے. آپ کسی کو پکڑ کے کہیں گے چلو بیعت کرو، بیعت کی بھی تو تاکید ہے کہ بیعت کرنا چاہیے، بیعت سے نہیں بھاگنا چاہیے. آج کوئی خلیفہ ہے ہی نہیں تو آپ اس پہ کہیں گے کہ نہیں چلو بیعت کرتے ہیں، بیعت کا حکم ہے. تو بھائی کسی چیز کا موقع محل ہوگا تب اس پہ عمل کیا جائے گا نا. اگر موقع محل نہیں ہے تو خواہ مخواہ لوگوں کو گمراہ کرنا اور لوگوں کو ذہن کو خراب کرنا کہ نہیں چلو یہ کرتے ہیں، یہ غلط بات ہے. تو یہ جو جہاد کا لفظ ہے، یہ کسی کوئی پرسنل فائٹ کا نام جہاد نہیں ہے. اس کے پیچھے حکومت ہونی چاہیے، کوئی جو ہے اسلامی حکومت ہونی چاہیے، خلیفہ ہونا چاہیے. اس کے بغیر اگر کوئی 2-4 لوگ جا کے کسی کو مارتے ہیں، کچھ ایسا جو ہے دنگا فساد کرتے ہیں، اس کو جہاد کا نام دو، یہ بہت بے شرمی کی بات ہے. اسلام میں اس کی قطعی. Can I say something, اور sir? ایک بات، ایک منٹ عبدالباسط بھائی، میں آپ کو بتا دوں، Okay, ایک مسٹیک sure. کیا لوگ کرتے ہیں نا، لفظ جہاد جو ہے اس کے لیے یہ جو ترجمہ کرتے ہیں جنگ، یہ بالکل رانگ ترجمہ ہے. جو آپ نے سورہ توبہ کی 24 نمبر کی آیت میں بتایا، تو اس کے اندر بھی یعنی کہنا کہ جہاد کا مطلب جنگ ہی ہوتا ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے. کئی ریزنز ہیں اس کے. جیسے مثال کے طور پر سورہ عنکبوت سورہ 29 آیت نمبر 69 مکہ میں نازل ہوئی. اب اگر کوئی کہے کہ سورہ عنکبوت کی 29-69 جو آیت ہے، آخری آیت ہے سورہ عنکبوت کی، اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں. جاہدوا فینا، جاہدو کا مطلب ہے جد و جہد کرتے ہیں، سٹرگل کرتے ہیں، ہم انہیں اپنے راستوں کی ہدایت دیں گے. تو اللہ تعالیٰ راستوں کی ہدایت کسے دے گا؟ اللہ تعالیٰ اپنے راستے کسے بتائے گا؟ جو اللہ کے راستے میں جد و جہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. اب یہاں پہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھائی جہاد جہاں بھی پڑھو اس کا مطلب ہوتا ہے قتال، وار، تو یہ ان کی مسٹیک یہاں پہ پکڑی جاتی ہے. کیوں پکڑی جاتی ہے؟ کیونکہ یہ آیت مکہ میں نازل ہوئی. ہاں، مکہ میں نازل ہوئی، تب تو وہاں پہ جنگ تھی ہی نہیں، مکہ کے اندر تو وارفیئر تھا ہی نہیں. وارفیئر کا کنسپٹ کہاں آیا؟ جب مدینہ پہنچے، وہاں پہ جا کے جب ضرورت آئی تب جا کے اس کی اجازت آئی، اور تب اس کے تعلق سے آیتیں نازل ہوئی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مکہ کے اندر کوئی کہے کہ یہ جو ہے یہ جہاد کا مطلب قتال ہے، وار ہے، تو یہ لوگ مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں. اور یہ کیا ہوتا ہے، آج ایسے بعض لوگ ہیں جن کو ہے نا کوئی سمجھ میں نہیں آتا ہے، ان کے لیے فل اسلام جو ہے نا، ان کو لگتا ہے ایوری تھنگ از جہاد. جہاد کا مطلب کیا ہے؟ جہاد یعنی اسٹرگل ہے، لیکن ان کو لگتا ہے ہر چیز میں قتال ہے. اور ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آج اسلام کا نام بدنام کر رہے ہیں، جو رانگ انفارمیشن پھیلا رہے ہیں، اور جو خود بھی اس چیز کے شکار ہیں اور دوسروں کو بھی اس طرح سے مس گائیڈ کر رہے ہیں. تو میں نے آپ کے سامنے جو دلیل رکھی سورہ عنکبوت کی، یہ ایک اور دلیل ہے. اور ظاہر سی بات ہے جب ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیثیں موجود ہے اس ٹاپک پہ کہ افضل الجہاد، سب سے بہترین جہاد کیا ہے؟ ان یجاہد الرجل نفسہ وہواہ، کہ ایک شخص اپنے نفس کے خلاف، اپنے خواہشات کے خلاف جو جہاد کرے، یہ سب سے بہترین جہاد ہے. تو اس کو کیسے کوئی ایگزٹ کر سکتا ہے؟ اس کو کیسے کوئی چھوڑ سکتا ہے یا کہہ سکتا ہے اٹ ڈزنٹ ایگزسٹ؟ ہاں جی. Sir, can I say something briefly, very briefly? First of all, I have enormous respect for all of you, especially Kifayat Islam Sheikh Safiyullah Islam Ali. Enormous respect. بس میں سمجھے آپ کا غلام ہوں، اوکے. مگر مجھے تھوڑا I would like to understand. آیت نمبر 23 of سورہ توبہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے پھر بھی وہی پیار کیا جو پہلے تھا اپنے باپوں سے اور اپنے بھائیوں سے، جبکہ وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں، تو تم غلط ہو، گمراہی پہ ہو. ٹھیک ہے، یہ اس میں I would like to understand this also. And number two ہم دیکھتے ہیں لوگ تیاری ہمارے یہ جو آپ نے کہا نا سوال، آپ کے سوال کا جواب دے دوں میں اس میں، یہ والا سوال. let me complete and then I will go. Very briefly. مثلاً مطلب ہم کیا کریں؟ دیکھیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو باقی لوگ ہیں بہت تیاری کر رہے ہیں، مثلاً تیاری کر رہے ہیں بہت. ہم ایسے ہی دیکھتے رہے کہ اب ہمارا مطلب کچھ گڑبڑ ہو جائے. What should we study science؟ ہم سائنس میں ایکسل کریں اور صرف پھیل جائیں دنیا میں اور اللہ کی راہ میں کوشش کرتے رہیں.
مثلا my second question was کہ سورہ آل عمران کی آخری 11 آیتوں میں کیا ہمیں سائنس پڑھنے کی تعلیم دی؟ اس کے لیے اشارہ ہے کہ سائنس بھی پڑھیے، سائنس پڑھیے، کچھ ایسا ہے اشارہ؟ سائنس پڑھنے سے روک رہا ہے